अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਰਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕਾ, ਮਦੀਨਾ, ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਕੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਨੁਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਡਵਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਐਨੁਸ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। सो एनुषा जी, हम अगर बात करें, मैं अपने दर्शकों को दसना चाहांगी कि पंजाबी नहीं बोल सकते एनुषा जी, सो इन्हां नाल हिंदी दे विच असीं विचार करांगे। सो आपने ये सब्जेक्ट चुना, ये विषय चुना, अफगानी कंडीशन ऑफ अफगानी सिख्स एंड हिंदूज, तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, क्यों ये विषय आपने चूज किया? हर्षन जी, दरअसल मैं 2010 से मैं अफ़गानिस्तान पे रिसर्च कर रही हूँ और जिस वजह से मैंने एक मेरी ये किताब अ लीप फॉरवर्ड जो मैंने लिखा है, जो 2014 में पब्लिश हुआ। सो क्योंकि मैं 2010 से रिसर्च कर रही थी जी, मैं अफ़गानिस्तान के डिफरेंट फैसेट्स के बारे में जान रही थी, पढ़ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं और भी रिसर्च के अंदर जा रही थी। पर 2012 तक while I was 2 years into the research, मुझे ये पता नहीं था कि अफ़गानिस्तान में सिख और हिंदू लोग भी रहते थे जी। जब मुझे पता चला, मुझे ये बहुत हैरानी हुई कि जो बंदी रिसर्च कर रही है एक देश पे, उनको भी ये नॉलेज इतनी देर में पता चल रहा है। सो आई डिसाइडेड टू ड्वेल मोर इनटू दैट मैटर और मैंने सोचा कि मैं इस बारे में थोड़ा पढ़ाई करूं और ज़्यादा। जब मैं शुरू किया इस सब्जेक्ट में मटेरियल ढूंढने, पढ़ने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि there has not been enough work on these two communities. I was quite surprised और तब मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, क्या वहाँ पे उनके इतिहास बहुत कम दिनों का है, क्या वो बहुत इंसिग्निफिकेंट है, क्या वजह हो सकती है। जी बिल्कुल। पर
मैंने देखा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत, मुझे पता चला कि इनकी इतिहास जो है बहुत रिच है. These two communities of Afghanistan, the religious minorities of Afghanistan, have played extremely important role in every aspect of Afghan lives. और इस at the same time मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि इस सब्जेक्ट में मेरे पास इतने कम इन्फॉर्मेशन है. तो इसी दौरान मैं PhD का सोच रही थी. मेरे डॉक्टरल रिसर्च के लिए मैं जर्मनी जाने वाली थी और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी चीज़ पे काम करना है. और जब मैंने अपना काम शुरू किया तब आई मेट दिस जेंटलमैन कॉल्ड प्रितपाल सिंह जी, जो अफगान सिख है. और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है मिशन अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तानों के सिखों के बारे में है और उनके जो गुरुद्वारा, उनके जो रिच हिस्ट्री, जैसे आपने कहा गुरु नानक जी हैड विजिटेड अफगानिस्तान, सो इट इज सच अ रिच एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. तो उनके बारे में मुझे इस डॉक्यूमेंट्री से पता चला. और जब मैं दिल्ली आई मेरे रिसर्च के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अफगान सिख्स और हिंदूज इंडिया में हैं, तब मुझे आई मेट श्री खजिंदर सिंह खुराना साहब. और उनसे मैं इंटरव्यू के लिए मिली थी. मुझे पता नहीं था उन्होंने एक बुक लिखा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब लिखी है. तो उन्होंने मुझे एक किताब दी जिसका नाम है काबुल दी संगत अते अफगानिस्तान. ये बुक साडे कोल इस टाइम मौजूद भी है, ऐसी दिखाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. काबुल दी संगत ते अफगानिस्तान दा संक्षेप इतिहास, ये खजिंदर सिंह खुराना ने लिखी है और पहली बार कोई रिसर्च शायद अफगानिस्तान दे सिखां ते हुई. बिल्कुल. वैसे जैसे दर्शकों को पता है कि सिख कम्युनिटी हैज बीन स्प्रेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड और उनकी बहुत ही रिच इतिहास रही है, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज रही हैं वहाँ पे उनके स्ट्रगल्स के. बहुत कम कम्युनिटी है जिनके बारे में डॉक्यूमेंटेड किया गया है. अब थैंक्स टू खजिंदर सिंह खुराना साहब, देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अबाउट अफगान सिख्स हु हैड लिव्ड इन अफगानिस्तान. सो अगर बात हम कर रहे थे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, व्हाट वाज द स्टार्ट, देन अ लीप फॉरवर्ड, यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई. तो हम अफगानी सिखों की अगर बात करें तो उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या पिछोकड़ है, कब से वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं? आप तो जो रिसर्च है कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहिए. जरूर. देखिए, अफगानिस्तान पहले जो देश था वो इट वाज predominantly a Buddhist country. मैं कई साल पीछे जा चुकी हूँ. तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, जो अरब लोग जब आए, कॉन्कर किए वो सब रीजन, तब देयर हैज़ बीन अ मेजर कन्वर्शन जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग इस्लाम धर्म ले लिए. सो अफगान सिख्स और अफगान हिंदूज, आई मीन दे प्राइमरीली आर इंडिजीनियस कम्युनिटीज. गुरु नानक देव जी ने 1521 और 1540 में दो ट्रैवल्स किए थे अफगानिस्तान में, एंड दोज टू आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तब लोगों को लोग उनके संस्पर्श में आए और उनके द्वारा वो इंस्पायर्ड हुए और बहुत लोगों ने सिखिज्म पे कन्वर्ट किया. मतलब वो जो अफगानी सिख हैं वो इधर से नहीं गए हुए, इंडिया से नहीं गए हुए, वहीं से जो गुरु नानक पातशाह को मानने लगे थे, तो वो सिख हैं जो कन्वर्टेड सिख्स हैं. देखिए हर्षना जी, बहुत वहाँ के जो सिख अल्टीमेटली रहे, वो डिफरेंट फेज में डिफरेंट जगह से गए थे. Essentially बहुत ज़्यादा लोग, जैसे मैंने कहा, वहाँ गुरु नानक देव जी के बाद दे वर इन्फ्लुएंस्ड. जो 10 गुरुज थे सिखिज्म के, उनके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस और कनेक्शंस रहे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ. सो उनके इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग वहाँ पे धर्म लिए भी है. बहुत सारे लोग, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहा है बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ट्रेड रिलेशंस कहिए, सोशियो कल्चरल रिलेशंस कहिए, तब यहाँ से कुछ लोग वहाँ गए. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, जब 1947 में इंडिया पार्टीशन हुए थे, तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में थे, जो खैबर पख्तूनख्वा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में जो सिख और हिंदू लोग जो थे, उन्होंने कईयों ने डिसाइड किया कि हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लैंग्वेज, उनकी बोली आती थी और उनको हर तरह से जो अफगान गवर्नमेंट
थे, जो किंग्स थे, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया और उन्होंने लगा कि इंडिया जाने से बेहतर है हम यहीं पे रह जाए अपने लोगों के साथ जो हमारी भाषा जानते हैं, हमारी बोली बोलते हैं। तो इस तरह से there have been several cross section of processes and events जिसके आधार पे ultimately there have been a substantial Sikh and Hindu population in India, in Afghanistan. तो अगर बात करें पॉपुलेशन की बात हुई है तो कितनी गिनती में वहाँ पे सिख हैं? This is a very interesting question. देखिए, एक एग्जैक्ट डेटा मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ में अफगानिस्तान के, व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, बिकॉज वहाँ पे सेंसस नहीं हुआ है बहुत दिनों तक, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस इतने वोलाटाइल रहे हैं कि ये सब करना मुमकिन नहीं था। सो व्हाट आई हैव गॉट टू नो आर अप्रोक्सीमेशंस, एंड ये कहा जाता है कि 1979 में जब सोवियत इंटरवेंशन हुआ था अफगानिस्तान में, तब तकरीबन काबुल के आसपास और काबुल शहर में अराउंड 30,000 सिख्स यूज्ड टू लिव। सो और बाकी जगह कांदाहार, जलालाबाद, खोश्त, ये सब बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे सिख और हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी स्प्रेड हुए थे। सो देयर वाज अ सब्सटैंशियल अफगान Sikh and Hindu population in Afghanistan. At the same time, we have to remember that even at the height of their flourishment, it was around 1 to 2% of the entire population. Rest were primarily Muslims. जी बिल्कुल। तो पॉपुलेशन जिस हिसाब से है, आपने बोला 2% है, तो वो मायने रखती है देश के लिए। Definitely. और अगर बात करें वहाँ पे उनका कैसा रहन सहन है, कैसे वो जिंदगी बसर करते हैं, और जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, पब्लिक परसेप्शन की अगर हम बात करें तो वो सिख और हिंदुओं के लिए कैसी हैं वहाँ के लोगों की? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले मैं आती हूँ आपकी पहली सवाल पे कि वो कैसी लाइफ वहाँ कैसी लाइफ लीड करते थे। दरअसल ये जो कम्युनिटीज़ है, ये प्राइमरीली वो ट्रेडर्स, बिजनेस कम्युनिटीज़। उनके आज तो यहाँ पे मैं जब इंटरव्यू कर रही थी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे यहाँ तो दुकानदारों को भी लोग ट्रेडर कह देते हैं, पर हमारे वहाँ ऐसा नहीं था। हम जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से चीज़ खरीद के, से चाइना से खरीद के किसी दूसरी जगह बेचते थे। वहाँ पे सिल्क रूट जाता था ना, वो जो इंडिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था, दैट यूज्ड टू गो थ्रू अफगानिस्तान। सो इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड ट्रेड रूट, एंड these two communities were primarily they belong to yes. और कहा जाता है कि they were the backbone of the economy of Afghanistan's economy. So you can understand how important role they must have played. कि अफगानिस्तान में ही इनको ये कहा जाता है कि Afghans and Sikhs and Hindus have been the backbone. इकोनॉमी में उनका काफी इतना important contribution रहा है। तो ये communities ये तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि entirely one community was extremely well off या entirety one community was not, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादातर लोग they were well settled, उनके पास अच्छे काम थे, they were happy leading their lives। और जितना मैंने बात किया है, सब एक चीज़ constantly मैं सुनी हूँ, वो कहते थे कि हमारा लाइफ बहुत पीसफुल था, हमारा लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था। ये चीज़ हमें बाद में we encountered on the later phases, but initially during Zahir Shah, even during दाऊद खान, वो कहते हैं कि हमारा लाइफ काफ़ी पीसफुल था, हमें रिस्पेक्ट मिलता था, हम अच्छे थे, हमारे देश है, हम वहाँ जन्मे हैं। बर्थ प्लेस के साथ किसी का भी कनेक्शन बहुत गहरा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो हमेशा when they look back today, they have only mostly till one period they have only fond memories about that place. आपके दूसरे सवाल है कि वहाँ के लोग कैसे देखते थे। जैसे हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, तो लोगों के नज़रिया और उनके बर्ताव भी एक जैसे नहीं थे। बिल्कुल। पर मैं पॉजिटिव चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ कि जो एनलाइटेंड और लिबरल और पढ़े लिखे लोग थे, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, और वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जैसे उनको लाला जो टर्म है, जो वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल टर्म है अफगानिस्तान में, जिसका मतलब है बड़े भैया, जैसे हम कहते हैं ना। तो
वो लाला जान, लाला हिंदू कह के बुलाते थे। अच्छा। देखिए लाला हिंदू वो अफगान सिखों को भी और हिंदुओं दोनों को भी लाला हिंदू कहते थे, क्योंकि उनका ये अंतर उनमें क्लियर नहीं था कि हिंदुइज्म और सिखिज्म का अंतर जो है, तो ये बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से ये इन लोगों को लाला हिंदू, लाला जान, सरदार जी ऐसे करके पुकारते थे। एट द सेम टाइम देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, पीपल हैव हैड एक्सपीरियंसेस व्हिच वर बिटर, व्हिच वर नॉट समथिंग दैट दे वांटेड टू एक्सपीरियंस। पर जैसे मैंने कहा कि हर सोच बिल्कुल सबकी सोच एक जैसी नहीं होती सबके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बोला कि हिंदू सिख दोनों को लाला हिंदू कहकर बुलाते हैं, तो वहाँ उनका पहरावा क्या एक जैसा है हिंदू और सिखों का? देखिए जहाँ तक मैंने देखा है और पढ़ा है, हिंदुओं को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके बोल, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके ड्रेस, उनके सब कुछ जहाँ वो रहते थे उनकी तरह उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। जी जी। पर जो सिख पॉपुलेशन है उनकी दे वर डिस्टिंक्ट, क्योंकि जो 5 के होता है, किरपान, करा, कच्छा, कंगा एंड केश, ये उनको कम्प्लीटली अलग करता था पॉपुलेशन से। एट द सेम टाइम हर्षरन जी हैव नोटिस्ड व्हाइल वर्किंग विद दीज टू कम्युनिटीज दैट इनके जो टर्बन बांधने की जो स्टाइल है वो थोड़ी अलग है इंडियन सिखों से। जैसे दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग। जैसे यहाँ के हमारे इंडियन सिख जो है उनके जब वो टर्बन बांधते हैं उनके कान नहीं दिखता है, इनके थोड़ा कान दिखता है और इनके पगड़ी थोड़ी छोटी होती है relatively. So I think these are things they have adopted from the people, because Afghans also wear turbans. So theirs is a mix. And it's a very interesting and beautiful mix which I see. जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बात की थी कि वहाँ पे वो इकोनॉमी के लिए बहुत स्ट्रांग थे, उनका बिजनेस बैकग्राउंड था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अफगानिस्तान छोड़ के कुछ अफगानी सिखों को माइग्रेट करना पड़ा भारत में, और भारत में उनके कैसे हालात हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। दरअसल माइग्रेशन, अफगानिस्तान का जो माइग्रेशन है वो डिफरेंट फेजेस में हुआ है। एक तो मैं कहूँगी 1970s में जब सोवियत रशिया हैड इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान, तब देयर हैज बीन सम पॉपुलेशन who had left Afghanistan, but most of them were extremely well off even in Afghanistan, and when they came to India they kind of settled down. It was not a conflict led displacement. However 1992 onwards when the civil war started in Afghanistan, जब वहाँ पे युद्ध शुरू हुआ, तब situation was really bad. And when I say the situation was bad during civil wars, I do not only suggest that it was bad only for the minorities. It was a terrible situation for any Afghan, and Afghans in millions have left Afghanistan during that period of time. जैसे कहा जाता है 3 million Afghan had taken refuge in Pakistan, 2.5 in Iran. वैसे इसी दौरान 1992 में बहुत सारे अफगान सिख्स और हिंदूज उन्होंने डिसाइड किया कि और रहा नहीं जा सकता, इतनी हालत खराब हो गई थी युद्ध के वजह से। जो मैं उनसे बात करके आज मुझे पता चला है, एक तो ओवरऑल सिचुएशन वाज रियली बैड, बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो एक्सट्रीमली कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट द ऑनर ऑफ their women, the honor of their families. तो किसी भी इंसान के लिए अपनी देश छोड़ के जाने का जो डिसीजन होता है, ये आई थिंक इज वन ऑफ द toughest decision, but they were compelled to take that decision because they didn't have an option. उनके पास कोई चारा नहीं था. They had to just leave the country. और उन्हें लगा कि भारत, जिनके साथ पंजाबी कोई कुछ अफगान सिख्स काबुल में भी पंजाबी बोलते थे अपने घर में, हालांकि उनकी पंजाबी थोड़ी अलग है, उनमें फारसी पश्तो के इन्फ्लुएंसेस है। तो एक तो रिलीजियस प्रॉक्सिमिटी, देन द लैंग्वेज, देन आल्सो द डिस्टेंस, एंड सम ऑफ देम यूज्ड टू कम टू इंडिया बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड, अर्लियर ट्रेड रिलेशंस। और उनको कहीं ना कहीं आस भी थी कि वहां पे उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल। इसी सोच के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिया
जाएंगे, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वेंट टू द वेस्ट, जर्मनी, क्योंकि मैं जर्मनी में अभी रह रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पे भी एक सब्सटेंशियल अफगान सिख पॉपुलेशन है। दे ऑल्सो वेंट टू लंदन, साउथ हॉल में बहुत बड़ी उनकी बड़ी तादाद में वो गए हैं। एक ये चीज़ आई हैव टू मेंशन दैट यू नो अफगान सिख्स हैव ऑल्सो हैव गॉन टू रशिया एंड चाइना एंड देयर दे हैव ऑल्सो erected gurudwaras. This is a very very big thing for any community, I think, to have their religious pilgrimage worship place in. और गुरुद्वारे की बात हुई है तो अफगानिस्तान में हम ये शायद स्किप कर गए हैं। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे कहाँ पे जैसे वो भक्ति करते थे, गुरुद्वारे कितनी मात्रा में है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा जैसे रिलीजन की तरफ से हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सालों तक they were given the right to practice their own religion that they want to. इसीलिए there was a time जहाँ अफगानिस्तान में कई गुरुद्वारे थे, they were prosperous, and गुरुद्वारा जैसे इंडिया में भी मैं आज देखती हूँ, it is not just a religious place. It is a place for social and cultural activities. शादियाँ गुरुद्वारे में होती है, लोग मिलते हैं गुरुद्वारे में, बैसाखी में गुरुद्वारे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा में गुरुद्वारा। So it is just not कि हम गए प्रेयर करके चले और रिश्ता नाता खत्म हो गया। तो वहाँ भी ये जहाँ पे भी अफगान सिख्स रहते थे, वो कंदाहार कहिए, जलालाबाद कहिए, हर जगह पे उन्होंने अपना गुरुद्वारा बनाए थे। और वहाँ पे उनके स्कूल्स भी थे कि बच्चे उधर पढ़ने भी जाते थे, पंजाबी सीखते थे, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे। तो पर मतलब कुछ टाइम पहले तक उनको राइट था अपने रिलीजन को मानने का, या उनका जो सोशल स्टेटस था वो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। और अगर आज की बात करें तो अब क्या हालात हैं, और जो इंडिया में आए हैं तो वो किन हालातों में रह रहे हैं, और क्या अब उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। समय की थोड़ी कमी है तो हम बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो अभी उनकी देखिए टेक्निकली अभी भी उनके पास अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने की राइट्स है, पर द थिंग इज आफ्टर दिस ओवर्ट इस्लामाइजेशन, और ये जब तालिबान पीरियड आया था तब उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया गया। उनको कहा गया कि आप येलो बैज पहन के चलिए सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। ये सब चीज़ के बाद देयर हैव बीन इश्यूज, और अभी जो सिचुएशन है शायद तालिबान पीरियड से बेहतर है, पर मैं ये नहीं कह सकूंगी कि बहुत अच्छा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहाँ चाहे गुरुद्वारा फिर से शुरू कर सकते, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल कार्ते पारवान एक बहुत ही ख़ास जगह है काबुल के, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। मैं जब अफ़गानिस्तान गई खुद 2012 में, मैं तो हैरान हो गई कि एक 98% 99% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री में इतनी बड़ी गुरुद्वारा है, और जहाँ पे लोग इतने जाते हैं। वहाँ एक टेम्पल है, असामाई टेम्पल। ये दो आई वुड से अभी दे आर देयर एंड यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे कंटिन्यू टू बी देयर। अदर्स दे आर इन वेरी वेरी सैड स्टेट, आई मस्ट से। तो अभी भी मतलब जो वहाँ के लोगों की परसेप्शन है सिख्स और हिंदुओं की, तो वहीं पे रहना चाहते हैं वो, क्योंकि उनका वो नेटिव कंट्री कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आती होंगी, जैसे आपने बताया कि हालात कैसे हैं। तो जो भारत में अब आपकी बात करें, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो जर्मनी यूनिवर्सिटी से, एल्बर्ट यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो इंडिया आप अब क्या चल रहा है, कहाँ तक आपकी रिसर्च पहुंची है? दरअसल मैंने 2013 में शुरू किया था अपना काम, और दिस इज 2015 एंड आई शुड बी फिनिशिंग नेक्स्ट ईयर। सो मैं कहूँगी कि मेरा काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, और मैं अभी दिल्ली में हूँ क्योंकि मेरा काम बिकॉज ऑफ माई फील्ड वर्क, एंड इस बार मैं बहुत सारे लोगों से बात कर सकी। सिर्फ किसकी हेल्प ले रहे हो आप? ये बहुत थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई रियली हैव टू टेक वन नेम, जिसका जो इस बुक के ऑथर है, आपने पहले ही परिचय, बिल्कुल, उनका नाम है खजिंदर सिंह खुराना साहब। वो यहाँ एक बहुत ही, वो जो ग्रेटर कैलाश में जो गुरुद्वारा है, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन देयर, एंड ही नॉट ओनली फॉर दैट गुरुद्वारा, ही
he is also a very prominent member of the Afghan Sikh and Hindu welfare society. तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है. उन्होंने मुझे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू सेवरल पीपल. बिकॉज ऑफ हिम आई कुड conduct several interviews with different communities. जैसे खोस्ट जो प्रोविंस है अफगानिस्तान में, हमारे जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहाँ भी है. खोस्ट जो प्रोविंस है वो इट इज़ अ बॉर्डरिंग प्रोविंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो वहाँ के जो सिख्स है दे आर वो सहजदारी सिख है जो दाढ़ी टर्बन नहीं रखते हैं, पर बहुत ही उनकी भक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो मुझे ये पता नहीं था, बिकॉज मैं सोचती थी सिख मतलब जैसे हम जैसे हमें सरदार का मतलब ही ये होता है जिसने बिल्कुल. तो उनके वजह से मैं उनसे बात कर सकी. वो अभी भी घर पे पश्तो बोलते हैं. उनको हिंदी पंजाबी भी वो कम बोलते हैं. हिंदी तो लगभग आती ही नहीं है, और जितनी आती है वो बिल्कुल पठानों की तरह वो हिंदी बोलते हैं. सो डिफरेंट. आई हैव बीन एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू मीट different other Sikhs of India who have helped the Afghan Sikh and Hindu community to settle in India. I would so I mean everybody, I mean, if he had not helped me, if he had not introduced me, I must also take the name of Khalsa Diwan Society, जो अफगान सिख और हिंदू बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं. काम कर रही हैं. जी उन्होंने पढ़ाई के लिए, उनके रहन सहन के लिए. जी उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है. तो मैं जहाँ भी गई हूँ हर्षरन जी, जहाँ भी गई हूँ, सभी से मुझे सिर्फ प्यार और cooperation ही मिला है. And I think I am extremely fortunate that because of my work I got linked to this community. जो शायद नहीं होता अगर मैं ना करती. जी बिल्कुल. और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको और पूछना चाहूंगी. जैसे आप सिख कम्युनिटी को आप मिले हो, वहाँ पे आप सिर्फ अफगानी सिखों को मिले थे, यहाँ पे आपका काफी सारी कम्युनिटी से. तो कैसा आपका अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा? और साथ ही साथ बहुत ही थोड़े शब्दों में ये जानना चाहेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है. बिल्कुल. तो उनकी अब क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड्स हैं, सरकारों से क्या डिमांड करते हैं जो इंडिया के सिख्स हैं? राइट. Again, responding to your first question first, the Indian Sikh community, they all are extremely appreciative of these people because इनके traits और इनके जो खासियत है ये उन्हें भी नज़र आते हैं. They are extremely hardworking people, they are honest people, और ये सब चीज़ों की वजह से they have खुद अपने बलबूते पे आज वो जितना कर सके, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली द इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज नॉट टू प्रोएक्टिव टू हेल्प देम इन देयर रीसेटलमेंट फेजेस. और उन्होंने खुद अपने बलबूते पे आज बहुत सारे अफगान सिख्स और हिंदूज जो है दे आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट देयर अडॉप्टेबिलिटी इज समथिंग आई हैव ऑलवेज हर्ड फ्रॉम इंडियन सिख्स आल्सो. जी बिल्कुल. तो काफ़ी सारी जो ज़रूरतें आज भी उनकी हैं, लेकिन सरकारों की तरफ से शायद कोई उनको उतना हेल्प नहीं किया गया जितना करना चाहिए. तो अनुषा जी, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਔਰ ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ अनुषा ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, editorpunjabi@zmedia.sgroup.com. SMS ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ स्पेस देके अपना सवाल, सुझाव, अपना नाम टाइप करो, भेज दिओ 57575 उत्ते. तुसीं चिट्ठी पत्र के जरिए भी सानू संपर्क कर सकते हो. साडा पता नोट कर लो, एक ओंकार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल FC 19 सेक्टर 16 फिल्म सिटी नोएडा 201301. अनुषा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ. ਆਓ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.